Hello, Yamina. How are you? I'm good. How about you? Great. Thank you for asking. So I think this is your second time on Heather Showbiz, Yeah. correct? Yeah. Yeah. So how is it? It's really exciting to come down here and discuss about the topics which are actually trending at the Mm-hmm. moment, and to reach out the people should know about what is happening on from the Mm-hmm. digital side or technology. So it's Correct. really an Earlier we exciting. spoken about what I think digital marketing Yeah, it and was a women digital empowerment, correct? women empowerment and Correct. digital marketing was a topic. Mm-hmm. And now this time we would be discussing about cybercrime, right? So when I heard about cybercrime, it's something about मेरे ज़हन में आता है scam, correct? Yeah. So whenever you see about the word cybercrime, right? So what something pick up in your mind? So when cybercrime is just not restricted to scam, cybercrime is a vast activity which is done through the use of internet. Vast unauthorized illegal activities which are done through the use of internet. So when I say unauthorized illegal, we have something which happens offline, like the robbery and all. Correct. But now with the technology coming into picture, everything is happening online. And cybercrime is where they steal your information, they try to damage you either financially, either with your with your Information or identity, something, yeah, correct. or either with your with your pictures or anything. So it's like completely damaging either an individual or a person, or trying to either scam them, take money from them, and then that's the whole idea, is to earn something about it. It Correct. either could be a kind of a monetary satisfaction, or it could be any kind of Because just- cybercrime, whenever I used to see about the cybercrime, so it's something which is it's very old cybercrime. It's not about the new, right? But if I talk about AI, which is now the replica of the cybercrime nowadays, right? So AI is something which is more far dangerous as compared to what we are used to it, right? Cybercrime. So AI, how you would define AI according to your convenience? So AI actually is not something that has come to create damage to the people. AI is like a support system to us. AI can help us, do new things and make life easier. So the content part, or either creatives or the videos. But what has happened is the people have started taking advantage of it in the wrong way. Correct. So someone is using your information, for example, what people have started doing is, with the use of AI, I can easily create a replica or a video of someone who's dead. Forget about being live, who's dead also. And I can just send it to other people, or I can use it somewhere in the documentary, wherever I want. Secondly, there are times when people do WhatsApp calls, okay? Correct. Take the help of WhatsApp, do a video call to their to your near ones, and tell them, okay, I need money, I'm in so and so trouble. But actually that's not authentic. This has been a Fake very calls. common case which happened recently where someone has done it. So now and also deepfake coming into picture. Correct. Like deepfake where complete morph- identity, yeah. morph a photo of Right. either normal individual. In fact, Yeah, celebrities are I also was just victim seeing a to it. video on YouTube as well. So there was some kind of case study which I was looking at. So उसमें कैसा था ना कि for example the person was been dead, okay, वो नहीं है रहा दुनिया में. Now with the help of deep fake उसकी identity use की गई है, right? एंड उस पर डीप फेक पे वीडियोस बनाई गई है, राइट? एंड वो यूटिलाइज की गई है, राइट? फॉर एग्जांपल के तौर पे हाउ इट वर्क्स, देयर इज एन ऑस्ट्रेलियन कंपनी, राइट, बाय द नेम ऑफ वोडाफोन, राइट? ऑस्ट्रेलियन में है जैसा अपना कैसा एयरटेल होता है, वोडाफोन है, जियो है. ऑस्ट्रेलिया में देयर आर मल्टीपल सर्विस प्रोवाइडर. अब वहाँ पे उनको अगर अपना प्रोफाइल बनाना हो, ठीक है ना, तो प्रोफाइल बनाने के लिए वो vodafone.com.au पे जाते हैं, ठीक है? वहाँ पे किसी एडवाइज़र पे चैट कर रहे होते हैं या किसी पे कॉल कर रहे होते हैं. तो वो कहते हैं कि मुझे ना आई एम विद करंट सर्विस प्रोवाइडर. तो अब उसके बाद एडवाइज़र ये बोलता है कि ओके फाइन, वी विल बी क्रिएटिंग योर होल प्रोफाइल विद वोडाफोन, ठीक है ना, और फिर उसके बाद वी कैन गो अहेड, ठीक है? तो प्रोफाइल में क्या लेता है? अपना नेम, डेट ऑफ बर्थ एंड एवरीथिंग, एड्रेस हो गया, पिन नंबर हो गया. पिन नंबर आर फॉर दोस्त जिसको वोडाफोन में एक्सेस करना हो पिन नंबर, ठीक है? उसका सेकंड स्टेप होता है कि दे वांट आइडेंटिटी कार्ड, ठीक है ना, जिसमें ड्राइविंग लाइसेंस होता है, मेडिकेयर कार्ड होता है. अच्छा, ड्राइविंग लाइसेंस, मेडिकेयर कार्ड आर दोज कार्ड जिसको 100% ऑफ आईडी होता है इवेंचुअली, राइट? और अदरवाइज इफ़ यू आर फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, न्यू साउथ वेल्स, तो उसके लिए ओनली ड्राइविंग लाइसेंस, उसके लिए आपको मेडिकेयर की ज़रूरत नहीं है, पासपोर्ट की भी ज़रूरत नहीं है, करेक्ट?
अब अगर फ्रॉड आया है बेसिकली, अब फ्रॉड ये सोचेगा कि यार इसको आइडेंटिटी से कैसे फूल करूँ, ठीक है। तो क्या करेगा पता है, वो आपको पासपोर्ट दे देगा, ठीक है। किसी का फॉर एग्जांपल मैंने आप ही का पासवर्ड उठा के उसको दे दिया, ठीक है, वो वैलिडेट हो गया। वैलिडेट इन सेंस कि वो सिस्टम में जो है डालते हैं इन्फॉर्मेशन और वो ऑटोमेटिकली वैलिडेट होके नेक्स्ट हो जाता है। अब नेक्स्ट स्टेप हो जाता है तो उसके बाद होता है क्रेडिट चेक। मतलब फॉर एग्जांपल अगर आपको मोबाइल फ़ोन ले रहे हो, फॉर एग्जांपल आईफोन है, सैमसंग है, फॉर नेक्स्ट 24 पीरियड और इट कुड बी नेक्स्ट 36 मंथ्स ऑफ पीरियड, ठीक है। अब वो फ़ोन के लिए एलिजिबल हो या नहीं हो कैसे पता चलेगा, ठीक है। तो उसके लिए होता है क्रेडिट चेक। मतलब समझ लो आपका एलिजिबिलिटी है या नहीं है, इक्विपमेंट लिमिट है या नहीं है। तो उसके लिए उस कुछ कभी कभी सिस्टम जो OCR भेजता है, वेर यू हैव टू क्लिक दैट फोटो और उसके बाद उसको वैलिडेट करना होता है। एज सुन एज यू वैलिडेट, आपको सिस्टम जो है आपको ऑर्डर प्रोसेस की तरफ ले जाएगा। यू डोंट हैव टू पे, एज ऑफ नाउ अभी कुछ पे करने की जरूरत नहीं है। इट विल रिफ्लेक्ट इनटू योर नेक्स्ट बिलिंग साइकिल, ठीक है। अब कभी कभी जो सिस्टम है बेसिकली वो कभी OCR भेजता नहीं है। 90% चांस होता है कि वो आगे शिफ्ट कर जाता है बेसिकली। तो अब OCR में बेसिकली वो जैसा हम बात कर रहे थे डीप फेक की, ठीक है। तो ऐसे भी एप्लीकेशन देखा है मैंने यहाँ में ना, जो हार्डली कैसा होता है ना, फिजिकल कॉपी का रेप्लिका बनाता है और वो बैकग्राउंड के जो ब्लैक है, वाइट है या जो भी बैकग्राउंड का कलर है उसको फेड आउट कर देता है और वो आपको बड़ा स्क्रीन में ऐसा लगेगा दैट इट इज़ अ फिजिकल कॉपी और आप उससे फोटो क्लिक करो वो आपको आगे जाने देगा, ठीक है। यहाँ आपका फिजिकल नीड पूरी हो गई ID कार्ड की। यहाँ पे फिर आप नेक्स्ट गए, अपना एड्रेस सिलेक्ट किया और अपने ऑर्डर प्रोसेस कर दिया, ठीक है। और आपके पास अच्छा यहाँ पे बैंक अकाउंट का भी आता है, जिसको बोलते हैं बैंक अकाउंट नंबर, वहाँ पे बोलते हैं BSB नंबर, अकाउंट नेम अकाउंट नंबर। हमें फलाना किसी का दे दिया और वहाँ पे ऑथेंटिकेट नहीं होता, आपने दे दिया वो आगे नेक्स्ट हो जाएगा। अब मेरे पास तो फ़ोन आ गया, ठीक है, विद इन नेक्स्ट 5 बिजनेस डेज मेरे पास फ़ोन आ गया। अब जिसका ID यूज़ किया गया, ठीक है, वो फंसा है, ठीक है। जिसका बैंक अकाउंट मैंने यूज़ किया उसके अकाउंट में से पैसे कटेगा नेक्स्ट बिलिंग साइकिल पे। अब वो सोच रहा है कि मैंने फ़ोन ऑर्डर ही नहीं किया तो पैसे कैसे कट रहे। अच्छा चलो, उसने देखा कि भाई वोडाफोन से पैसे कट रहे, उसने कॉल बैक किया, ठीक है। अब कॉल बैक करने के बाद वो ये देख रहा है कि मैंने कभी फ़ोन ऑर्डर ही नहीं किया था, ठीक है, मतलब इट्स अ फ्रॉड। अब क्या करेगा, बिकॉज अब तो या तो बैलेंस अमाउंट का वो पे ऑफ करेगा पैसा विच इज़ मोर देन $1,000 समथिंग, या तो वो एवरी मंथ जो है पैसा पे करेगा, बिकॉज यहाँ तो फंस गया। अब अगर उसको बाहर निकलना है तो उसको पूरा जो डिवाइस है उसका पैसा पे करना पड़ेगा, करेक्ट। तो ये एक तरह का जो फिजिकल कार्ड का जो फ्रॉड होता है ना, तो यहाँ से भी हो जाता है, डी फेक से भी हो जाएगा या AI से भी हो जाएगा। तो देयर आर मल्टीपल केस सिनेरियो जो मैंने देखा है कि इंटरनेशनल लेवल पे तो होता ही है, बट अगर हम इंडिया की बात करें, इंडिया पे इस लेवल पे स्कैम्स होता है कि आपके खुद के बैंक अकाउंट में से पैसे कट जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा कि कैसे डिडक्ट हो गया, बिकॉज यू आर यूजिंग दोज एप्लीकेशन जिसमें मेलवेयर हो, लाइक दैट काइंड ऑफ, करेक्ट। सो इंडिया में ये आज से नहीं चला है, लाइक यू सेड साइबर क्राइम इज नॉट अ न्यू टर्म, इट्स अ वेरी ओल्ड टर्म। विद द इंट्रोडक्शन ऑफ AI, yes, it's more people have become aware about it. That's a different story. But cybercrime has been in the industry since years, and it started off like not just with अभी जैसे आप बता रहे थे ये वोडाफोन में हो रहा है. Correct. Similarly it happens with certain big companies from India where ईमेल्स पे जैसे बात करते हैं. अब जैसे हम साइबर क्राइम के अगर हम वी सी ऑब्वियसली वी गोइंग टू डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ साइबर क्राइम. तो एक ईमेल स्कैम होता है. Okay, when email scam hota hai, you start getting mails from certain companies and they ask you, okay, this is specifically for students, like there are certain times you get letter from L&T or RBI or something that we have a job opportunity. You have to give some amount to this particular pay some amount to get enrolled for the interview, and they will link to the live website as well. This happens and wahan pe being a fresher, being a student, because they are so fresh in the market, they don't understand. हाँ, they don't understand कि ये इसका second side क्या हो सकता है. वो जाके कभी कभी उस numbers पे payment भी कर देते हैं. And this is very realistic. तो जो yes, one thing I would like to tell you, no big companies will charge you for employment. That's there. And if you really want to verify, if you still have that thing coming up, then go call the head office, visit the head office and take the clarity. पता है इसमें भी ऐसा होता है अमीना, दुबई में एक स्कैम चला था रिसेंटली, ठीक है ना, अभी तक जो है चलता हुआ आ रहा है सिंस आई थिंक 2010, 11, 12. सो ऐसा होता है कि कोई भी बंदा जो है 3 महीने के विजिट वीज़ा पे दुबई जाता है फॉर जॉब, ठीक है. तो एक कंपनी है जो ये कहती है कि हम आपसे लाइक 500 दिरहम्स या 250 दिरहम्स लेके हम आपको जॉब दिलवा देंगे, ठीक है ना. एंड व्हाट काइंड ऑफ स्कैम इट इज़, यू वोंट बिलीव इट. मैं गया उसके ऑफिस पे गया, ठीक है.
वहाँ पे देखा ऑलरेडी काफ़ी लोग बैठे हुए, तो मेरी ऑथेंटिसिटी जो है बढ़ गई, बढ़ ठीक है, और जेन्युइन लोग बैठे हुए, ठीक है, और सब जो है मेरी तरह जो इंटरव्यू देने आए। तो वो कहता है कि हमारे पास लिस्ट ऑफ कंपनीज़ है, फॉर एग्जाम्पल 15, 18, 20 कंपनीज़ है, आपके इंटरव्यू के ऊपर जो हम किसी एक कंपनी में आपको अलॉट कर देंगे, सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे 3 राउंड्स होगा। तो बोला ठीक है। अब सर 3 राउंड्स में कैसा होता है ना, बेसिकली फर्स्ट राउंड जो है इन्हीं का बंदा लेगा, ठीक है ना, ठीक है। सेकंड राउंड होगा कि आपको बाहर बिठाएंगे, ठीक है ना, उसी दिन क्लियर करेंगे, बाहर बिठाएंगे, बोलेंगे सर आप कॉन्ग्रेचुलेशन, आप क्लियर हो गए हो। सेकंड आपका जो इंटरव्यू जो है फॉर एग्जांपल पद्मा मैडम लेगी, ठीक है, ठीक है फाइन। उसको वो मैडम ने इंटरव्यू लिया, ठीक है, ओके सर हमने तो क्लियर कर लिया आपको। अब आपका जो इंटरव्यू जो थर्ड फाइनल राउंड है वो कंपनी का HR लेगा, जो कंपनी का HR ना बाजू में ही बैठा हुआ है दरवाज़ा बंद करके, ठीक है। तो ठीक है, तो उसके बाद इंटरव्यू जो है उसने PC पे दिया, तो उसने इंटरव्यू दिया, ओके फाइन, ठीक है। तो उसने बोला कि सर आप 5-10 मिनट बैठिए, हम जो है कंक्लूजन देखते हैं दैट यू गॉट सिलेक्टेड और वॉट समथिंग। अब बैठा हुआ है, ठीक है, अब इंटरव्यू के लिए उसने पैसा दे चुका है ऑलरेडी, ठीक है ना, तो उनको पता है कि क्या करना है। अब 99% सबको तो फेल करना ही है उनको, क्योंकि उनके कंट्रोल में। तो आएंगे बोलेंगे सर आई डू रिग्रेट टू इन्फॉर्म यू दैट यू आर नॉट बीन सिलेक्टेड फॉर दिस ऑर्गेनाइजेशन सो एंड सो, बट हाउएवर हम आपको मदद करेंगे टू फॉर एनी अदर कंपनीज और समथिंग लाइक दैट, डू यू वांट टू ट्राई। ठीक है, नो ओके, बट सर फॉर दिस अनदर कंपनी अगेन 250 दिरहम्स लगेगा। नहीं नो थैंक यू, और वो चला जाएगा। तो जितने भी जो बंदे आ रहे हैं 250 दिरहम जो है स्कैम कर ही रहे हैं, मतलब पैसे का ही कर रहे हैं। तो अब जैसा आपने बताया ना कि हम कभी कोई पर्टिकुलर कंपनी में कॉल करके नहीं पूछते कि आपका कोई एजेंसी है, फॉर एग्जाम्पल XYZ एजेंसी आपने यहाँ पे खोल के रखी है शारजा में, आर दे द ऑथेंटिकेट पर्सन टू डू दिस, नहीं पूछते। हम जेन्युइनली जाते हैं, इंटरव्यू देते हैं, सिलेक्ट हुए थे, ठीक है, नहीं हुए तो खुदा हाफिज़ बोल के वापस आ जाते हैं। तो ये एक स्कैम का एक और ये भी नया तरीका है। सो दिस इज अ टाइप ऑफ वेरिफिकेशन दैट यू शुड बी डूइंग, बिकॉज ये ज़रूरी है. सो आई एक्चुअली एम अ mentor also. So whenever I'm taking sessions or something like that, I make sure that I tell my students okay, first of all, never put your contact details live. Correct. Whether it be any profile or professional platforms like in LinkedIn and all, you have to be stay safe. It's not that it's a professional platform, you won't get Correct. wrong people or wrong people connecting to you. You can still become a victim to all these things. So it's Correct. better to be smart always. Now when your social media is also concerned, you should always have a very separate public profile and a Personal profile. personal profile, because Nice. you have a lot of things which you are putting on your personal profile and people might take advantage. But अगर phone number डालना ही है, you can use an alternate You mobile always number. have a professional phone number. That's a better option. It's freshers they might not take it, but after some time you realize that this is not going to work out, because it start hampering your personal, because you start getting marketing messages, other Correct. aspects भी होते हैं उसके, जिसकी वजह से professional number और एक email ID separate होना is always the best part. Nice. So yeah. लेकिन इसमें पता है एक AI है बेसिकली, इट इज़ कॉल्ड मेलचिम्प, राइट? MailChimp, yeah. तो जितने लोग जो है जो मार्केटिंग में है जो दे यूज़, राइट? तो मेलचिम्प में कैसे हम लीड्स खरीद के यू कैन यूज़ दैट, राइट? अब लीड्स तो टू बी वेरी ऑनेस्ट भंडार के रेट पे जो है मिलती है, राइट? यू जस्ट पे एनी मार्केटिंग एजेंसी व्हाट 10,000 12,000 वो आपको लीड्स दे देंगे, ठीक है ना? अच्छा, लीड्स देने का मतलब ये नहीं कि वो जेन्युइनली हॉट लीड्स होंगी जिसपे आपका जो है, अगर इफ़ यू वांट टू सेल अ प्रोडक्ट और इफ़ यू कॉलिंग योर कस्टमर और क्लाइंट टू पिच योर प्रोडक्ट और सर्विसेज, ऐसा नहीं कि वो कॉल उठा के जो है बात करेंगे. दोज लीड्स कुड बी रिफर्बिश लीड्स. रिफर्बिश लीड्स का मतलब ये होता है कि ऑलरेडी उस पर कॉल्स जा चुके हैं, ठीक है, मैसेजेस जा चुके हैं, दे आर फ्रस्ट्रेटेड वन. आप उनको कॉल जाएंगे तो दे वुड बी यूजिंग अब्यूसिव लैंग्वेज, ठीक है. तो अब ये लीड्स की क्या प्राइस होती है? 10,000 20,000 अप्रॉक्स, ठीक है. बट इसमें यू विल गेट अ बल्क लीड, मतलब ऐसा नहीं 1,000 2,000 नंबर्स मिलेंगे. मेल चिम में डाले हमने कुछ एक ड्राफ्ट बनाया विच इज़ वेरी कॉमन और उनको एक साथ जो है भेज दिया. अब सेकंड थिंग इज कि हमने उनको कॉल करना शुरू कर दिया, विच इज कॉल्ड सेल्स कॉल्स होते हैं ना, बेसिकली कोल्ड कॉलिंग होते हैं. बेसिकली हमने उनको लीड्स दे दिया, हमने अपने सारे क्या कहते हैं उसको, सेल्स मैनेजर एडवाइजर्स के लेवल पे, और वो बंदे कॉल्स कर रहे हैं. किसी को कॉल्स नहीं लग रहा है, किसी को नो रिस्पॉन्स जा रहा है, किसी ने उठाया नहीं, रिंगिंग स्टेटस हो रहा है. तो ये जो नंबर्स जो मिलते हैं वो इसी तरीके से मिलते हैं कि हमने कहीं अपना पब्लिकली अपने नंबर के डाल दिया है, वहाँ पे उन्होंने रिट्रीव करके सेव कर लिया है. तो 90% नंबर्स आर बीन सेव्ड एंड यूज्ड फॉर दिस सेल्स पर्सपेक्टिव. तो ये सारी चीज़ें होती है. हाँ. और कहीं ना कहीं ये भी लगता है यामिना कि अगर नंबर्स मिसयूज हो जाए तो टेंशन की बात अलग होती है. और नॉट फॉर दिस नंबर्स एज वेल, ID कार्ड भी अगर मिसयूज हो जाए तो फिर टेंशन अलग हो जाती है.
एक सिनेरियो आपको बता दी जो बहुत कॉमन हो रहा है. आई थिंक मोस्ट मेरे पास भी आया है. आई वुडंट रिफ्यूज टू दैट. आई थिंक यू माइट हैव. सो देयर आर पीपल हु सेंड यू मैसेजेस फ्रॉम unknown numbers saying that we are providing part-time jobs. We'll pay you 150 rupees per review. We are working for big companies. मुझे भी आया था. उसका रिप्लाई में मैंने पता क्या लिखा, डू यू नो हु एम आई, तो लिखती है नो आई एम द CEO ऑफ वन ऑर्गेनाइजेशन, सीधा ब्लॉक. उसकी डीपी दिख रही थी, अभी डीपी भी गायब होगी. So I actually tried to dig into it. So I realized that I know you guys are. I told the person, I know you guys are fooling. It's really wrong. So then also they have the confidence of pitching me. आगे तक करते हैं, बट इसमें मज़ा आती है उनसे बात करने में. उनको अपने को पता है कि इट कुड बी अ स्कैमर या फ्रॉड है. हम लगे हुए हैं इसके साथ मजाक मस्ती कर रहे हैं. अच्छा और 10 लोग को और लेके आऊँ तो क्या मिलेगा, कोई कमीशन है, ये है वो. उसको समझ में आ जाता है यार ये मेरे साथ खेल रहा है, ठीक है. देन वो खुद बंदा जो है ना आपको स्टॉप कर देता है मैसेज करना. बट द प्रॉब्लम दैट हैपेंस इट्स even in the connects also you might come across कि अरे ये मुझे मैसेज आया है, ये सच है क्या. everyone wants to do something side by side and that's fair enough. और स्पेशली डिजिटल में तो आप काफ़ी सारी स्कोप है जो कर सकते हो. इट इज़ नॉट दैट कि आप you can't generate revenue from digital. It is one of the best platforms in India everyone is looking for part time. पता है for example if I say कि Yamina I will pay you 50,000 rupees by sitting at home in the year 2019, you would be saying कि scam है, correct? Now same thing in 2024 if I'm saying that Yamina I will pay you 1 lakh rupees paying from home, which is work from home, so you would be like हाँ Syed I will be doing that, correct? Because the पास साल में क्या बदल गया ना, मैं बताऊँ कि जब कोविड आया ना, तो कोविड आने के बाद दे वर लाइक कि अब कंपनी तो इम्पैक्ट कर चुकी थी. वर्क फ्रॉम होम का कॉन्सेप्ट था ही नहीं पहले. 2009 था बट वो स्पेसिफिक फ्रीलांसर्स के लिए था, नॉर्मल वर्क कल्चर्स के लिए नहीं था. तो जो कंपनीज थी ना, जो बड़ी बड़ी कंपनीज थी, जायंट कंपनीज थी, वो ये सोच रही थी अब क्या करें, बिकॉज अब तो घर बैठे हुए. उन्होंने कॉन्सेप्ट लेके आया वर्क फ्रॉम होम का. वो वर्क फ्रॉम होम का कॉन्सेप्ट इंडिया में भी अच्छा लगा, बिकॉज इंडिया जो है वो एक ऐसा कल्चर है जो एडॉप्ट करने में महारत रखता है एज़ कम्पेयर टू खुद का इनोवेशन रखना, ठीक है. तो उसने बोला कि यार इंडियंस वाज लाइक कि हाँ वर्क फ्रॉम होम मिल रहा है, बेटर है. 2020 उन्होंने वर्क फ्रॉम होम किया, ठीक है. 2021 वर्क फ्रॉम होम किया. 2022 का आई डू रिमेंबर द ट्रेंडिंग कीवर्ड वाज WFH, वर्क फ्रॉम होम, ठीक है. नाउ उनको ऐसी आदत लग गई है ना कि उनको आज के टाइम पे भी वर्क फ्रॉम होम करना ही करना है, ठीक है. बट ये वर्क फ्रॉम होम का एक और साइड ये हो गया है, whatever you call it, moonlighting or whatever, but everyone has got onto digital, like your social media or Correct. YouTube, especially YouTube or Instagram with reels or shorts, where they've started creating content. Maybe some people have started writing good blogs and all. वो positive aspect है, and they started generating revenue. So वो जो होता है ना, obviously see there is recession, जॉब कट्स हो रही है, तो वो प्लस पॉइंट ये हो गया है कि हमें यहाँ से रेवेन्यू मिल रहा है. रेवेन्यू मिल रहा है, गुड साइड है कि हम इसका मतलब यू कैन टेक एडवांटेज ऑफ इट. बट द रॉन्ग साइड टू इट इज कि अगर ये जॉब कट हुई है, इसकी वजह से लोगों ने, जो पीपल हु आर प्रोफेशनल विद द टेक्नोलॉजी हैव स्टार्टेड taking disadvantage of it. Correct. So a lot of people, I'll tell you, when these scams happen, somehow I have heard certain conversations, where the scammers have also been involved, where if you listen to these people, you might sound very, very like uneducated or something like that. Some might be so proficient in the technology, like यार इसको ऑफिस में बिठा के हम अपना ही IT का वर्क करा सकते हैं. So a lot of people are also from that side. It is just not the people who are just from a very area which is not well developed, but it's a mix because of the job cuts. So this is happening. So it is just not now what has happened is, अगर उसका एडवांटेज उठाना है तो शायद वो डिजिटल के थ्रू रेवेन्यू जनरेट करना चाहते हैं, बट अब उन्हीं ने डिजिटल. बट अभी भी पता है यामिना, जब वर्क फ्रॉम होम का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया ना, जस्ट लाइक पेजर, बिकॉज आई बिलीव मैं अभी व्हेन आई यूज्ड टू से कि वर्क फ्रॉम होम वाज इज इक्वल टू पेजर. जितना पेजर चला उतना वर्क फ्रॉम होम चला, ठीक है. तो अब वर्क फ्रॉम होम खत्म हो गया तो कंपनीज वाज लाइक अब क्या करें, क्वेश्चन मार्क था. तो उन्होंने एक सिनेरियो निकाला विच इज कॉल्ड हाइब्रिड सिचुएशन. 2 days फ्रॉम ऑफिस, 3 days फ्रॉम योर होम लोकेशन, करेक्ट. तो इससे कैसा होगा कि हाँ कॉस्ट बजट भी जो है वो कहना कि बैलेंस शीट में जो है टैली वैली हो रही है, ऑर्गेनाइज सब चल रहा है. तो यहाँ पे जब बंदा जब घर से कर ही रहा है, तो अब ये सोचा कि मैं एडिशनल इनकम कैसे कमाऊँ. फर्स्ट ऑन टॉप सबके टॉप लिस्ट पे जो है कंटेंट क्रिएटर ही है. क्या करना है, यूट्यूब चैनल खोलना है, क्या करना है, खुद का व्लॉग करना है, ठीक है. अच्छा
इनको पता है कि करना क्या, कैसे करना है वो पता नहीं है, ठीक है। और जब करने पे आते हैं तो फिर एक होता है ना कि नहीं हो पा रहा है तो फिर लोग छोड़ ही देते हैं। छोड़ देते। तो ये सिम्टम ये भी है कि हाँ हाइब्रिड में काम नहीं हो पा रहा अच्छे से। हाँ वो है, वो होता है कि मतलब डिफिकल्ट हो जाता है, बट हाइब्रिड मॉडल आज भी काफ़ी सारी कंपनीज अडेप्ट करती है। इनफैक्ट वी ऑल्सो वर्क फ्रॉम द डिजिटल मार्केटिंग, इफ लॉट ऑफ from my side also, yeah, other companies, if we see from digital marketing, we can still work on the hybrid model, not completely, Correct. because that is not a good option. Practically it's not a good option. बिकॉज फैमिली मेम्बर्स में मैंने देखा है कि जो छोटे बच्चे होते हैं ना, दे वर लाइक कि फादर वी वुड बी गेटिंग वर्क फ्रॉम होम व्हेन वी वुड बी क्वाइट इनफ टू अर्न। बिकॉज अब उनको भी चाहिए कि वर्क फ्रॉम होम होना चाहिए, बिकॉज वो भी फादर मदर को देखते हुए आ रहे हैं कि वर्क फ्रॉम होम का कॉन्सेप्ट है। और जो छोटे बच्चे जो होते हैं जो टैबलेट नहीं यूज़ करना आ रहा था 2019 में, उनको भी यामिना यू वोंट ट्रस्ट कि उनको जो है आईपैड हो गया या टैबलेट हो गया, मोबाइल फ़ोन हो गया, वो सब यूज़ करना आ गया। So this is one aspect which actually needs to be monitored by the parents, because when your kids are using any kind of digital devices, you are just handing over the kids. Maybe see, this is a concept कि हम लोग ऐसे फैमिलीज में देखते हैं कि कभी बच्चे जिद करते हैं, अभी तो जिद करके ही एवरीवन, हाँ सारे बच्चे लेते हैं, बट किस टाइप का कंटेंट पहले तो देख रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है, और किस टाइप पे कभी कभी वो बच्चे क्लिक कर देते हैं काफ़ी सारे लिंक्स पे, वो अननोइंगली होता है। देयर इज समथिंग कॉल्ड एज पेरेंट, यू नो, चाइल्ड लॉक एंड ऑल ऑफ दीस, बट आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट वाले बॉक्स में आ बट जाता है। अब हर टाइम पे या हर आई थिंक हर Monitor फैमिली नहीं में कर ये सकते नहीं हैं। होता है। तो वो चीज़ें ज़रूरी है कि आप किस एज पे, तो see, being from the digital platform, the marketing doesn't mean that you have to completely support it. You know which side it is going, so you have to strict with the age when the child can use the mobile, or when the child is able to understand things. If you're giving it, so then please sit with the child and show it to the kid. So इसमें क्या होता है, इसमें दो तरीके के होता है। इंडिविजुअल लेवल पे होता है क्राइम होता है एज एन इंडिविजुअल, which can fall from the financial aspect or either from the bullying part. So when I say individual level पे crime होता है, financial aspect पे, so someone whose my data is easily available on the internet. Somehow I might have given my PAN card, Aadhaar card, Correct. in some form to some companies, and companies unfortunately do sell the data. They do that. TikTok आया था बीच में कि even they have sold Meta has that. done that. You really, and when your account gets suspended, or they feel the account is fake and all, they ask you for the ID card. They're taking my ID card. They have another way of using it. Correct. So what happens is, when these data go out, now once the data is full, these hackers can easily purchase. Yeah, they get the data. They see your PAN card, Aadhaar card, whatever it is. They just try to give you a call. Okay, this is what I'm trying to highlight about the UPI transactions that are happening. So try to give you a call, and they will take, okay, this is your name, this is your father name. Correct. So they'll just call you, and they become so personal with you, in the sense कि आपके कोई करीब वाला है, आपकी पहचान वाला है, ऐसे इतना रैपो बिल्ड हो जाता है हाँ, बेसिकली। कि आपके अकाउंट में पैसे डालने बोला, या अब मेरे अकाउंट में आपके कोई रिलेटिव नहीं, या भाई बहन नहीं, या दादी ने पैसे डालने बोला है, तो आप प्लीज ये नंबर पे डाल दो। मोस्टली इट हैपेंस विद द चिल्ड्रन कि कोई घर में बच्चा है तो वो कर भी देता है। हाँ, कर भी देता है। और कभी कभी व्हेन यू आर नॉट एज एन इंडिविजुअल आल्सो, इफ बीइंग मैच्योर आल्सो, इफ यू आर नॉट इन द सेंसेस ना, you can also become a victim to it. Correct. So they play with your mindset so strongly that they try to get you emotionally involved in that part, and tell you, okay, your parents they require some money, और उनके अकाउंट पे नहीं हो रहा है, या वो मुझे नहीं भेज पा रहे, उनकी मेडिसिन लेना है, आप प्लीज मुझे भेज दो। और बंदा जो ऑन द स्पॉट वो कर देगा, बिकॉज आई नो दे आर माई पेन पॉइंट्स। मेरा उनका नाम आएगा तो मैं कहीं नहीं, और वो जो होता है वो फेज अभी मार्केट में, इट्स वन ऑफ द मोस्ट कॉमन थिंग दैट्स हैपनिंग, एंड वंस यू डू द ट्रांसफर, द मनी इज गॉन, एंड रिवर्स का भी कोई ऑप्शन नहीं है। रिवर्सिबिलिटी, सी you might see a lot of people coming, messages coming up that the amount can be reversed. But unfortunately, if the account has been wiped off, there is hardly any chance that you'll get back the money, and there's no buffer time to it. There's no buffer time to it. But yes, it's always better when you become a victim of such crimes, go and report to cybercrime. And cybercrimes are there in every police station in today's world. So obviously people might think, okay, police station, no, it is for your security.
And especially when it comes to cybercrime, you have to report the event, even if your money is gone and you know it's not going to come back. It's a पता necessity. है बट ऐसा भी होता है कि किसी ने अगर फॉर एग्जांपल 1000 2000 3000 अमाउंट ले लिया विच इज़ अ वेरी छोटा अमाउंट है बेसिकली राइट. अब उसके लिए पीपल नॉट एनीवन बट हर एक ये सोचता है कि उसके लिए क्या पुलिस स्टेशन जाना हो. See, it is not about the amount. It is about your number being used. Your information is already gone out. And secondly, you are giving a transaction to someone else from your UPI. Okay? Correct. If the person is smart enough, there are ways to get your bank other details also. So, इसलिए for your own security, it is always better to do it. टाइम वेस्ट करना नहीं होता है. वो आप जाके थोड़ा सा जो हमारे पुलिस अथॉरिटीज़ हैं उनको हेल्प कर रहे होते हो अपना डेटा डालने के लिए कि आई हैव बिकम अ विक्टिम एंड इनफैक्ट इवन योर बैंक गेट्स alert that Correct. okay, no transaction should be happening from this account. So that is a very valid point for your own security from the personal point of view, in fact from the financial point of view. हाँ बिकॉज अगर बंदा समझदार है तो जो इंसिडेंट होने वाला होगा वो उसको देख के समझ सकता है. फॉर एग्जांपल यहाँ पे अंधेरी में भी एक ऑफिस है बेसिकली. ओके, इट इज़ कॉल्ड हाइक एजुकेशन. ओके, अब हाइक एजुकेशन क्या करता है ना बेसिकली वो एक MBA के जो कोर्सेस है वो सेल आउट करता है. ठीक है ना. नाउ ये एक तरह का स्कैम है. कंपनी जो लोकेटेड है वो गुड़गांव की है. अच्छा. ठीक है, और यहाँ चलाते हैं एंड दे सेज कि हमारे जयपुर में और यहाँ वहाँ उनके ब्रांचेस है. पता किया तो देयर आर नो ब्रांचेस. ठीक है, So they have their office here, right? यहाँ पे इनका ऑफिस है. अब किसी ने अप्रोच किया था ना, आई वाज लुकिंग फॉर कवर केस स्टडी बेसिकली. तो कवर केस स्टडी में इट वाज कि ये लोग कैसे उठाते हैं ना स्टूडेंट्स को कि ये लोग कैंपस से जो है स्टूडेंट्स उठाते हैं और यहाँ से नहीं, मुंबई से बिल्कुल भी नहीं, कहाँ से यूपी से कहीं बाहर दूसरे सिटीज़ से वो उठाएंगे. बोलेंगे कि आपको जो है हमारी कंपनी में आना है और हम आपको जो है 35,000 40,000 की सैलरी देंगे, अकोमोडेशन आप खुद देख लेना या तो पैसे बढ़ा देंगे 50,000 कर देंगे. ओके, नो वरीज. अब फॉर एग्जांपल एक बंदा है वो आया है पुणे से मुंबई. ठीक है ना, मुंबई में ही डजंट नो एनीवन. करेक्ट. अब वो इस स्कैम का शिकार बना हुआ है. ऑफिस जा रहा है, रेगुलर जा रहा है. ठीक है, उसने अपना ID कार्ड, वेदर इट कुड बी व्हाट, पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक डिटेल्स, इवन वो अपना अंगूठा विच इज अ बायोमेट्रिक, उसने वो भी सबमिट किया हुआ है बिकॉज वो ऑफिस आता तो ही गिव्स हिज अटेंडेंस राइट. तो वो 1 महीना ऑफिस गया. अब 1 महीने के बाद उसकी सैलरी उसके नेक्स्ट मंथ नहीं मिली. ठीक है ना. तो फिर उसको बताया गया कि सी दिस इज़ अ सेल्स जॉब. ठीक है, इफ़ यू आर नॉट डूइंग अ परफॉर्मिंग अ सेल्स यू वोंट गेट योर सैलरी. ठीक है ना, आपको एक कोर्स जो है बेचना पड़ेगा. और ये कैसा है पता है कि वही अगेन रिफर्बिश लीड्स में जो है आपको गेम खेलना है बिकॉज यही जो कंपनी अफोर्ड कर सकती है. हॉट लीड्स तो निकाल नहीं सकती है. 1-1.5 लाख पर अफोर्ड नहीं कर पाएगी तो 10-20 हज़ार में लीड्स निकाल के चर्न लीड्स बेसिकली डिस्ट्रीब्यूट कर देती है. अब उसमें से अगर किसी एक बंदे ने एक सेल निकाला तो कंपनी का फायदा है. बट कंपनी बोले कि देयर इज अ टारगेट ऑफ 3. अब बड़ा मुश्किल है 3 टारगेट्स करना. अब 3 टारगेट्स नहीं करेगा तो कंपनी उसको ये कहेगी विच इज़ हाइक एजुकेशन, बोले कि वी कैन नॉट गिव यू सैलरी, आपको जो है हम कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे. तो बोले नो वरीज, 1 महीना मैंने जो काम किया उसकी सैलरी आप देते. तो उसने बोला कि ठीक है वी विल बी गिविंग यू सैलरी. टर्म एंड कंडीशन में लिखा है कि आपका FNF जो है आफ्टर 45 डेज आएगा. कानून ये कहता है कि आपका FNF जो है विद इन 45 डेज आएगा. ठीक है ना. जो इंटेलेक्चुअल है उनको पता है इट शुड बी विद इन 45 डेज, नॉट आफ्टर 45 डेज. यहाँ पे उनको लिखा सर इट विल बी आफ्टर 45 डेज, आप चले जाओ आपको जो है मिल जाएगा. वो बंदा जो है ओके लॉयल्टी के साथ जो है वो वापस पुणे चला गया और अब उसको जो है उसका पेमेंट ही नहीं आया. अब वो कॉल कर रहा है, HR जो है वो मना कर रही है कि नहीं सर होगा एंड साइलेंटली दे स्टॉप पिकिंग द कॉल. अब उसको पता है कि उतनी दूर से यहाँ आएगा भी तो उसको बोलेंगे कि सर ऐसा नहीं है, आपने सेल नहीं किया है, कुछ नहीं हो सकता है. नो क्या करेगा. तो स्कैम ऐसे भी होता है कि उनको पता है कि किसको टारगेट करना है स्कैम के लिए. बिकॉज जैसे कि फॉर एग्जाम्पल पिरामिड का प्रोजेक्ट है, बिल्डिंग का प्रोजेक्ट है, उसको पता है कि भाई किसको टारगेट करना है जो बिल्डिंग में अपना अपार्टमेंट खरीदेगा. करेक्ट. उसी तरह से जो स्कैमर्स होते हैं ना उनके टारगेट ऑडियंस होते हैं, उनको पता है कि किसको टारगेट करना है ताकि उनको डैमेज ना हो सके. डेफिनेटली अगर किसी हाई प्रोफाइल को डैमेज करेगा वो खुद डैमेज हो जाएंगे. स्कैमर्स जो है वो यूज़र फ्रेंडली होते हैं बट ये टारगेट ऑडियंस पे ही ज़्यादा फोकस करता है कि पता है कि हाँ स्टूडेंट है तो ये हम इनसे अपना काम निकलवा सकते हैं. सो सी स्टूडेंट्स जब होते हैं, ये जो स्कैमर्स होते हैं उनको मालूम है टारगेट किसको करना है, कब करना है, और दे आर वेरी वेल वर्स्ड के हाउ टू प्ले विद द माइंडसेट्स. नाउ अभी जैसे हम लोग डॉक्यूमेंट्स की बात कर रहे थे, अभी हम व्हाट्सएप पे भी काफ़ी टाइम ऐसा होता है कि हम बैंक्स में या कभी हमें फ़ोन आता है कि यू नीड क्रेडिट कार्ड या समथिंग या लोन के लिए. सबसे ज़्यादा स्कैम तो लोन्स पे होता है. करेक्ट.
तो उसमें क्या होता है, वो कभी कभी आपसे डॉक्यूमेंट्स लेते हैं, आपसे डॉक्यूमेंट्स लेने के बाद दे आस्क यू फॉर सम अमाउंट फॉर प्रोसेसिंग फ़ी या कुछ अच्छा। भी किसी भी के नाम पे, एंड देन once you give them they disappear, and that is also one thing that happens. Or WhatsApp पे big companies or good companies try to avoid having asking for sharing documents in through platforms like WhatsApp. They always prefer either their own app or either email. करेक्ट. So that is one important point that needs to be taken care of when you're giving a document. Always, whenever you're getting a call from a company or from HDFC or from anywhere, if they're telling you that you send us a document on an email ID, always check the email ID that they're giving you. करेक्ट. वो @ क्या है, हाँ, क्या at डोमेन the है. rate it has to be their main website domain. Okay. Gmail पे personally अगर आप जानते हो तो Gmail वाला account use करो. They might just tell you some XYZ their name @outlook.com @gmail.com or something like that. It is not advisable to share your documents on such email IDs because big companies do not work हाँ, like अगर फॉर this. एग्जाम्पल अगर एक कंपनी है जिसका नाम है XYZ, ठीक है ना, वो आपसे फॉर एग्जाम्पल कुछ काम करवाना चाह रही है, तो XYZ@gmail.com लगेगा. तो इट इज़ लाइक ना, अगर इतनी बड़ी कंपनी है तो वो जीमेल का क्यों यूज़ कर रही है. इट शुड बी info@xyz.com. हाँ, so it has to be the main domain which has to be connected with the email account. So for example, even Google Business, they've got strict now. And there's a complete scenario that is we worked on. So when they're verifying and if they feel the account, the person who's connecting with them is suspicious, they ask for the main domain email. They will not even send you on your Gmail. So that is how it has been working now. So we have a complete scenario with Google also where the accounts can get hacked, and it's a very risky thing that a lot of businesses are coming across. बिकॉज बिजनेसेस में कैसा है ना कि हाँ, अगर आपको ये पता है कि दिस बिजनेस इज़ राइट, अगर स्कैम नहीं हुआ तो. अब पता है, एक अगेन एक कवर स्टोरी देख रहा था मैं, विच वाज ऑफ दुबई, ठीक है ना. सो दुबई में एक फ़नी केस स्टडी था. एक कंपनी है जिसका नाम है रॉयल हॉलीडेज़, DMCC, ठीक है. ये है अपना JLT के पास, ठीक है. अभी वो एग्जिस्ट नहीं करती है, बट पहले इट वाज थी 2021 में, 2020 to 2021. तो कंपनी क्या कर रही थी कि बेसिकली जितने भी जो टूरिस्ट वीज़ा थे, जो काम करने के लिए आए थे बेसिकली, उनको उन्होंने हायर किया एज BDM, बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर. बिकॉज ये एक पोजीशन जो है पूरी दुबई में जो है चलती है. जहाँ पे डेवलपमेंट लग गया उसका मतलब सेल्स की कैटेगरी है. तो वहाँ पे जो उनका जो ऑर्गेनाइज़र था, या जो आप कह सकते हो मैनेजर जो था, उनका नाम है मिस्टर यासीन करके, ठीक है. यासीन बुखारी, ठीक है. अच्छा, ये नाम भी ओरिजिनल नाम नहीं है, ठीक है. इनका मैनेजर वाला जो है नाम है, ठीक है ना. तो उन्होंने कंपनी खोली, ठीक है ना. और एक और बंदा था करके, मनीष करके कोई बंदा था. तो इन्होंने कंपनी खोली, हायर किया. और ऐसे नहीं, मतलब 5-7 लोगों को, बड़े बड़े लोगों को जो है इन्होंने सेल्स रिप्रेजेंटेटिव हायर किया. और उनको कुछ काम नहीं था, बस आपको काम करना है और आपको आना है रेगुलर, कुछ छोटा मोटा काम देना है. उनका बिहाइंड द सीन वाला ये काम था. अच्छा, सारे लोग जो थे पाकिस्तानी थे, ठीक है. तो उनका ये काम था कि उन्होंने एक ऑर्गेनाइज़ किया था कि हम अपनी जो कंपनी है वो अवार्ड सेरेमनी रख रही है, ठीक है ना. आप लोग अभी न्यू लोग हो, लेकिन हम इस कंपनी ये जो कंपनी है रॉयल हॉलीडेज़, इसका एक सब्सिडरी ब्रांड है, एक ग्रुप ऑफ कंपनीज़ है बेसिकली, ठीक है. वो जो है अवार्ड सेरेमनी रख रही है, ठीक है ना. आप सबको भी आना है. ओके फाइन. तो उनसे काम निकल रहा है कि हमको ना अपने एम्प्लॉयज़ के लिए 1,000 आईफोन की ज़रूरत है, ठीक है ना. एक हार्ड ड्राइव की ज़रूरत है, ठीक है ना. 1,000 आप किसी वेंडर को पकड़ो और उनके साथ हमारी डील करो. तो सेल्स एजेंसी वाज लाइक कि ठीक है, मतलब सेल्स रिप्रेजेंटेटिव जितने भी लोग थे, दे वाला ठीक है, हम कर लेते बेसिकली. तो उसके बाद वेंडर्स आए, मीटिंग हुई, 1-2 वेंडर्स को उन्होंने चूज़ किया और साथ में आईफोन लिया उन्होंने 1000, ठीक है ना. और फिर वो कहा कि इसको जो है आपको ये लोकेशन पे डिलीवर करना है, वहाँ पे आपको चेक मिल जाएगा, ठीक है, 1 शॉट में. LG की मॉनिटर्स विच इज़ 32 इंच की टीवीज़, ठीक है, वो सब जो है उन्होंने ऑर्डर किया. और बाद में पता चला कि वो इवेंट था ही नहीं जहाँ पे लोकेशन पे जाना था. उन्होंने वहाँ से वो पिकअप किया सामान, ठीक है, लोड किया और वहाँ से गायब हो गए. और उसके बाद वहाँ पे इवेंट जो ताज होटल में जो उनका इवेंट होने वाला था वो हुआ ही नहीं. तो जितने भी ऑर्गेनाइजेशन जो वेंडर्स थे वो वापस ऑफिस पहुँचे. ऑफिस तो वैसे भी है, नॉर्मल ऑफिस है. तो बोला कि सर आपका तो वहाँ पे इवेंट ही नहीं है सर. और जो 5-6 लोग जो वहाँ पे जो थे उनको पकड़ लिए कि नहीं सर आप नहीं जा सकते हो, हमने इतना बड़ा किया है सर, ये स्कैम है, फ्रॉड है, सब समझ गए. तो उस समय उन्होंने पुलिस बुलाया, ठीक है. अब पुलिस जब आई तो पता चला कि एम्प्लॉयज़ का तो कोई कसूर नहीं है, ठीक है ना.
ये जो कंपनीज जो गेम करके गई ऑन बिहाफ ऑफ एम्प्लॉयज़, वो कंपनीज वो बंदे तो निकल ही गए निकल डेफिनेटली, उनका तो ऑलरेडी प्लान था कि वीज़ा एक वेयर हाउस बुक किए, अब नहीं पता वेयर हाउस किधर है, डम किए और लोग चले गए अगेन पाकिस्तान चले गए। अब कोई दूसरा बंदा आएगा वेयर हाउस से सामान निकालेगा, वो नहीं रहेंगे बिकॉज उन पे तो हाई अलर्ट लगा हुआ है, ठीक है। अब दुबई में कानून है जो लोग नहीं फॉलो करते, विच इज़ कि अगर आप विजिट वीज़ा पे हो आप जॉब नहीं कर सकते हो, अच्छा आपको विजिट वीज़ा जो है आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा इनटू व्हाट एम्प्लॉयमेंट वीज़ा, एम्प्लॉयमेंट उसके बाद किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आप काम कर सकते हो, अदरवाइज इट इज़ अ फाइन, ठीक है। तो जब पता चला तो जितने एम्प्लॉयज़ है सब पे फाइन लगा और बट छूट गया, ठीक है। लेकिन मज़े की बात ये थी कि उन्होंने सबने जो है अपना पासपोर्ट उस बंदे को दिया हुआ था आईडी कार्ड बनाने के लिए, तो जो बंदा भागा वो सबका पासपोर्ट लेके भी भागा वो। अरे बाप रे। तो दिस इज काइंड ऑफ स्कैम विच इज़ गोइंग ऑन नॉट इन इंडिया। इंडिया का मैंने हाइक एजुकेशन का जैसा एग्जांपल बताया, ये तो रॉयल हॉलीडेज़ का विच इज़ अ बिगर लेवल पे, वैसे ही मल्टीपल स्कैम्स जो है चल ही रहे। So Abhi, what is happening now when I told you there are two aspects when cyber crimes are involved. One is from the individual level, which is, we saw like I give an example of the GPay thing where they try to target. The second part to this is also like bullying, I would say, where someone is taking my information or someone is taking my images or someone is taking my, videos or something with some, now the game of AI has come into picture and they try to misuse it. Now here I also have to be sure how much authorization I allow to when I am trying to connect my accounts to other apps. Okay. Correct. Okay. When it's Instagram or when it's your Facebook and all, these are very common apps and they actually require authorization where they take your Correct. permission to use your photos. But there are 10 more apps which takes your approval. Yeah, nice. And I am not supposed to be giving a allow to everyone. Either syncing it with my Gmail or either allowing my access to all the photos. Correct. Because that is when I am authorizing the app to use my images. I'm telling the app, okay, use it. I have not read the disclaimer. I have not read anything. I am just completely going out of the way and doing things at the risk. Same thing happens, for example, if I'm going to a website, okay? The website will ask for a mobile number or maybe an email ID. That is a kind of a data collection that website does because Google is not completely into the favor of giving out data Correct. without the proper approvals. So when I'm giving an email ID or when I'm giving when I'm giving my contact number, there is a disclaimer or there is a privacy policy page which is connected to the website, which clearly states that we are going to use your information for the marketing purpose. Right. How much and to what level of marketing purpose is my responsibility to go and read that. It's a very common practice that we all follow. अरे ये कौन पढ़ेगा और ठीक है allow कर दिया. But that is where we as an individual are It's a also not mandatory to read. taking the responsibility. हाँ, हम responsibility नहीं ले रहे कि हम पढ़ ले कि वहाँ क्या लिखा है. Correct. हम वो चीज़ों को allow कर रहे हैं ताकि वो चीज़ें अपने आप हो रही हैं. But it's first is our responsibility. Then is obviously if I'm allowing, तो उनको तो full advantage है. They will do their activities, and it is not that every website is going to misuse your data, but there are chances that it can happen, and it does happen. काफी बच्चे जो है वो एक्सेप्ट करके जो है आगे Accept बढ़ करके जाते हैं. हाँ वो सोचते हैं अरे कुछ नहीं यार कुछ होगा नहीं, and it's very casual attitude. Dealing with students, I know that's a very casual attitude. अरे अभी कौन पढ़ेगा कौन Because students से मेरे को याद है, I have a question which is came from Mumbai University students. Okay, so I'll be taking just 2 or 3 questions for you. Okay, so इसमें कैसा था ना कि students से related questions जो, if I see, so how can parents identify if their child is being bullied online? So see, first thing I told you, obviously there's a maturity age that is justified by the Indian government, which Correct. is there, but now the social media platforms have also cut down the ages. So first important part of the parent is they should keep an eye of what type of activities are the kids involved. Because nowadays what is happening, a school going kid, okay? Now we see that 8th, 9th standard kids have good high, like iPhones and all. They हाँ, have show it, off करने के लिए yeah, जो भी show है. off, and they take it to schools also. Schools do Correct. have some protocols, but it is Because happening. iPhone has been termed as a Yeah. luxurious item. Huh. Correct. If I am giving a phone to my kid for security reasons, then it definitely should not be a smartphone. Correct. It can be a small, obviously we are
got rid of Small Nokia basic ka smartphone, black and हाँ. white phone, which is one of the best phones till date. But yes, you can give that. Obviously, you're thinking from the WhatsApp side, so integrate it with on your own phone and just have a clone on your own phone so that you know what type of chats are happening. So a lot of times schools have groups, kids have group where they discuss this. Just do a WhatsApp on your own phone, do a clone WhatsApp, and just keep it so that you can keep a track. Keep in track on And it. also, I'll tell you whether this is something which I also feel is not right, is with the mindset of the people, okay? Correct. When it comes to the mindset, because when you're asking a question where how will a parent come to know the child is bullied? A lot of time it's because a child is scared to share with their parents. Okay, this has happened with me. Now, why is that happening? Because there's a big gap of understanding. You're right. It's not that the parents don't understand, but it is just that they don't understand, sometimes don't understand the technology हाँ, because इतना as much mutual as we understanding नहीं understand. होती. Correct. हाँ, so उस टाइम पे अगर आप अपने child को support नहीं करोगे, he might just go up to the suicidal tendency also, because Correct. the bullying can take away the mental peace It of could be the into depression person. kind of, Yeah, हाँ. it can land the person into depression. So it is very important. Yes, monitoring is one thing, but understanding, yeah, okay, ठीक है. We might have posted a photo on social media and someone might have just taken it and misused it. And it Correct. is very common. Okay, it can happen with anyone, which is not right, but yes, we are still restricted from the law side. We still don't have good laws. So then in that case, as a parent or maybe as a guardian, it's Guardian, my correct. responsibility. How do I get my child rid of that? So there can be a scenario where they might not just, turn out to be public. They'll be scared. किस लेवल तक जा सकता है? We can understand, like societal भी हो सकता है, वो introvert level पे भी जा सकता है वो बच्चा, और वो आगे जाके career पे भी उसका वो Impact पड़ेगा. So it's better to take the kid out from it and then obviously carefully जाना होता है आगे, because the lesson learned is always better. Correct. But they will come out of it, and it's इसमें complete counseling एक for the चीज़ ये भी family. है कि एक एप्लीकेशन है by the name of Life 360, right? So Life 360 is something which is, I think, yeah, this is a free application for those parents जिसको मॉनिटर करना हो बेसिकली. उसको क्या करना है कि इवन यू शुड हैव अ लाइफ 360. मेरे पास भी होना चाहिए वही एप्लीकेशन, राइट? नाउ फॉर एग्जांपल, इफ आई एम आउट समवेयर यू कैन ट्रैक मी, इफ यू आर आउट समवेयर आई कैन ट्रैक यू. Yeah. ठीक है. तो इससे कैसा होगा कि यू कैन ऐड 4 फैमिली मेम्बर, 5 फैमिली मेम्बर, जितने भी हैं, राइट? सो यू कैन कीप एन आई ऑन दोज पर्सन कि वो ड्राइव कर रहा है तो क्या स्पीड पे ड्राइव कर रहा है, कहाँ है, कितना टाइम ले रहा है, उसका ट्रैकिंग मूवमेंट भी देख सकते हैं. इट्स अ फ्री ऐप बेसिकली. And one last question is that what are the potential consequences of e-bullying on individual mental health and well-being? So this is a So main I important think, question. so the thing is, mental health, it can be complete trauma. So for example, now if I've just put a kind of a random video with my friends and then next day it comes up in some or the other way, like, obviously the introduction of deepfake and all, it is being used somewhere and it's going around on the internet. Now, what will happen is, first is the mental trauma. It's going to be hampering my mental health completely, because I wouldn't be in a situation to understand why is that happened. I might not have put it for that reaction, but it has happened. Secondly, mental trauma, societal tendencies, withdrawal, like, you might just not concentrate on your studies, you might just want to give up on your career, you might not. So all of these things, see, nowadays, the counseling centers that are operating is just not operating for all this domestic office, this type of thing, correct. but it's come from for such activities also. So in that case, the first thing is their mental health and their physical health, because it is just not they are just thinking about it. Overthinking, They and are as you said, overthinking it would them. be landed into depression as well. They might land it and they might not eat properly. All of Correct. these things can hamper the kids' health. And yes, with today's digital world, it is very important for the parents to observe, obviously to monitor what the kids are doing, try to integrate with some apps. That's like you said, the 361, yes. Otherwise, if they are putting up on social media, see, content on social media, if they're putting out, you also have to monitor how much they are putting out, okay? So I hope this the student, those who are watching, they might have got particular ideas or something. So if there anything you want to share with the students out there? So students ke liye, it's, see, security is very important. Whenever you're going online,
be safe. Like, don't just randomly click on any apps, randomly allow any app to access your Correct. data to your especially your photos and all. Mm-hmm. And just make sure that you're not, because you get a lot of Mm-hmm. friends say references and all before jobs maybe. Correct. If you're getting a job opportunity, someone is telling, okay, you have to pay something. Please go Mm-hmm. and call the company head office, visit the head Cross office. verification हाँ, करने के लिए. never pay for a job. There's no company that charges for it. In fact, if there are some portals, they take it from there. But always make sure that Mm-hmm. check with the head office. In future also we can do some kind of seminar with the students on various I would say cover story where we can discuss about the business organization scam or something like that, so that could be better opportunity as well. Definitely we can do that. Right. Yeah. So because after speaking with you, even I got many much clarity. Okay, so thank you for that as well. Thank I thank you for coming for the show, and next time we would definitely speak regarding different topic as well if there will be something opportunity coming across. Sure. All right, thank you for joining Heather Showbiz. Thank you. It was nice coming out. Thank you.